नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। दुनिया में आजकल चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये किसके दोस्त हैं और किसके दुश्मन, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये कब मजाक करते हैं, कब सीरियस हो जाते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये हंसते हंसते कब गुस्सा हो जाते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये कब कोई चीज कह रहे हैं, कब कौन सी चीज मांग रहे हैं, कब जिद कर रहे हैं और कब उसे छीन लेंगे, ये भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग इस बात से बहुत हैरान हैं कि जो संस्थाएं अमेरिका ने बनाई थी, जिन्हें अमेरिका ही चला रहा था, ट्रंप ने उनका बायकॉट कर दिया है। उन्हें अमेरिका के खिलाफ बताया और डंप कर दिया। ट्रंप ने अपनी डिक्शनरी से शर्म, लिहाज, प्राइवेसी जैसे शब्द डिलीट कर दिए हैं। वो किसी भी राजनेता की चैट को सार्वजनिक कर देते हैं। बड़े नेताओं के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स की मिमिक्री करते हैं। दुनिया के सामने बेपर्दा कर देते हैं। बड़े से बड़े नेता को दोस्त भी कहते हैं और फिर उसे दुश्मन भी बताने लगते हैं। दुनिया कंफ्यूज है। आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? ट्रंप की यही अतरंगी स्टाइल समझने की कोशिश है हमारा आज का खास शो अहम ब्रह्मास्त्र। All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. They now call it the Donroe Document. I don't know. You cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it. People like Trump or don't like Trump. I settled 8 wars. कहावत है, तुम मुझे प्यार कर सकते हो, मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रेसिडेंट ट्रंप यही कह रहे हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े शांतिदूत होना चाहते हैं कि शांति का नोबेल प्राइज भी उन्हें मिले। वो दुनिया में 8 युद्ध सेटल करने का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वेनेजुएला पर अटैक कर देते हैं। वहां के चुने हुए राष्ट्रपति को पत्नी के साथ बंधक बनाकर अमेरिका उठा लाते हैं। Last night, on the order of the President of the United States, and in support of a request from the Department of Justice, the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice 2 indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. Nicolas Maduro had his chance until he didn't. He effed around and he found out. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, you know, if he says he's serious about something, he means it. But don't play games. Don't play games with this president's in office, because it's not going to turn out well. ट्रंप रूस और चीन के प्रमुख से मिलते हैं। पुतिन और शी जिनपिंग को ग्रेट फ्रेंड बताते हैं, लेकिन उन्हें पड़ोसी नहीं बनाना चाहते और ये बात छिपाते नहीं हैं। डंके की चोट पर दुनिया को बताते हैं। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ट्रंप के यहाँ ये न्यू नॉर्मल है। Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. We need that, because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. And I like China, I like Russia, I love the people of China, I love the people of Russia. I get along very well with President Putin, but I'm very disappointed in him.
I get along very well with President Xi. I'm going to go over to China in April, but I don't want them as a neighbor in Greenland. Not going to happen. And by the way, and NATO's got to understand that. I'm all for NATO. I saved NATO. If it weren't for me, you wouldn't have a NATO right now. But we're not going to allow Russia or China to occupy Greenland, and that's what's going to happen if we don't. ट्रंप खुलेआम धमकी देते हैं। ईरान या नॉर्थ कोरिया या फिर दुनिया का कोई और देश, ग्रीनलैंड पर तो वो साम दाम दंड भेद से कब्जा करने को तैयार है। Are you thinking of getting people in Greenland to get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. ट्रंप का टारगेट क्लियर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके बीच में जो भी आता है वो ट्रंप का शिकार बन जाता है। पहले आइडियोलॉजिकल थी, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट थी, वो अब ट्रांजैक्शनल हो गई है शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ और कहते हैं या करते हैं। और जो मेजर शिफ्ट जो है वो देखी जाए तो जो इनकी अलायंसेस थी वो काफी बीटिंग ले रही हैं, और ये कंसिडर करते हैं कि अलायंसेस एज ए टूल फॉर फॉरेन पॉलिसी एंड नॉट फॉर वैल्यूज ऑफ इट। और इससे क्या हो रहा है कि जो रूल्स जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो बने हुए हैं वो फॉलो करते हैं, अगर वो यूएसए को बेनिफिट करते हैं तभी, और नहीं तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। वर्ल्ड पावर जो है उसको थोड़ा सेकेंडरी रख रहे हैं ये। तो इससे क्या हो रहा है कि वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो ग्लोबल नॉर्म्स थे जो ग्लोबल एंगेजमेंट के, वो वीक हो रहे हैं। हिंदी फिल्म का डायलॉग है, मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, फिर चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या पूरे सिस्टम के खिलाफ। अमेरिका के राष्ट्रपति की नीति भी ऐसी ही लगती है, वरना ट्रंप उन संगठनों को ठेंगा क्यों दिखाते जिन्हें अमेरिका की अगुवाई में बनाया गया था, जिनका मकसद दुनिया को अमेरिकी मूल्यों और हितों की लाइन पर रखना था। ट्रंप ने 66 से ज्यादा ऐसे संगठनों की लिस्ट में अमेरिका का नाम काट दिया जो या तो अमेरिका की अगुवाई में बने थे या फिर उन्हें बनाने में अमेरिका की बड़ी भूमिका और सहमति थी। इसमें से 31 यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी संस्थाएं हैं और 35 गैर यूएन संस्थाएं। ट्रंप ने WHO जैसी संस्था के लिए अमेरिका की फंडिंग रोक दी, सदस्यता वापस ली। ट्रंप ने चली आ रही विश्व व्यवस्था से नाता तोड़ने वाला हर कदम उठाया है। पहली नजर में ये कदम बहुत गलत लगते हैं। सबके मन में सवाल है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ट्रंप की समस्या ये है मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। सोचता है कि मैं दुनिया का शहंशाह हूँ और अगर दुनिया में कोई मेरी मुखालफत करता है तो मैं उसको तोड़ दूंगा। टैरिफ से काम नहीं हुआ, अब हिंसा पे उतर आया। जब हिंसा से काम नहीं होगा फिर देखते हैं क्या करेगा। इसको मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म कहते हैं। ये खतरनाक व्यक्ति है, लेकिन ये भी है इसकी कमिटमेंट टोटली अमेरिका पे, और अमेरिका के लोग, उनको आदत नहीं है दुनिया में नंबर 2 होने की, वो नंबर 1 होना चाहते हैं हमेशा। पहले विश्व युद्ध के बाद से ही ये चल रहा है। तो ट्रंप भी जो है, मेरा मानना है, उनको बता रहा है कि आई कैन मेक यू नंबर 1 अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो बहाना है, लेकिन अमेरिका दुनिया का राष्ट्रपति होगा। मैं आपका राष्ट्रपति हूँ। मागा सपोर्टर यस, युद्ध विरोधी माने जाते हैं कि अमेरिका की इंटरवेंशन कहीं और ना हो, देश के अंदर फोकस करो, अमेरिका फर्स्ट। पर ट्रंप ने जो डिफाइन कर दिया, उसने कहा कि अमेरिका फर्स्ट होने के लिए हमें दुनिया में भी फर्स्ट होना है, और खास करके ये जो हमारा अपना इलाका है, जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, हमें यहां पर अमेरिका फर्स्ट करना है। क्योंकि अगर हम वेनेजुएला से ड्रग्स, कोलंबिया से ड्रग्स, इलीगल इमिग्रेशन नहीं रोकेंगे तो फिर अमेरिका के अंदर भी परेशानी हो रही है उनसे। तो ये कारण दर्शाते हुए ट्रंप इस पे सक्सीड कर रहा है कि दूसरे देशों में इंटरवीन कर सकता है। परंतु सबने अप्रिशिएट ये करा कि अमेरिका की मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, इतनी दूर से जाकर हमने ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स पे अटैक किया,
तो ट्रंप इसको फ्रेम ऐसे कर रहा है फिलहाल। यूएस चाहता है कि वो अपना कंट्रोल दुनिया पर इस प्रकार से बनाए रखे। यूएस को एक फाइनेंशियल सेंटर कहा जाता है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब कहा जाता है। वो नहीं चाहता कि उसकी ये नेतागिरी, ये दादागिरी, ये दबदबा कहीं से कम हो सके। तो जब जब डॉलर पर थ्रेट महसूस होता है, अमेरिका की हरकतें ज्यादा देखने को मिलती है। और हाल में हमने देखा कि भारत और रशिया का जो ट्रेड है ऑयल का, वो रूपी रूबल में हो रहा है। इसको लेकर अमेरिका को चिंता होती है और वो सैंक्शंस की बात करता है, वो 500% टैरिफ लगाने की बात करता है कि भारत क्यों रशिया से इतना तेल इंपोर्ट करता है। हमने ये देखा कि जब ब्रिक्स करेंसी के ऊपर बात उठी थी तो अमेरिका ने तब भी धमकी देनी शुरू कर दी थी कि अगर ये ब्रिक्स करेंसी आई तो मैं बहुत बड़े कदम उठाऊंगा और मैं और सैंक्शंस लगाऊंगा और मैं और टैरिफ्स लगाऊंगा। सबको याद है कि जनवरी 2021 में जब ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जो बाइडेन से हार गए तो उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया। आरोप था कि चुनाव नतीजों के बाद उनके ट्वीट्स के कारण हिंसा भड़की। सत्ताईस अक्टूबर 2022 को अमेरिका के प्रसिद्ध बिजनेसमैन एलन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए। इसके बाद जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सबसे काबिल और अच्छे दोस्त बन गए। ट्रंप के चुनाव में 200 से 250 मिलियन $US का चंदा तक दिया। 2025 में ट्रंप जब दोबारा प्रेसिडेंट बने तो मस्क को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। डॉज की स्थापना की गई। अमेरिकी सरकार के फालतू खर्चों पर रोक लगाने का काम सौंपा गया। ट्रंप और मस्क की दोस्ती इतनी बढ़ी कि मस्क का बेटा ओवल ऑफिस की मेज में लुका छिपी खेलते हुए देखा जाने लगा। औपचारिक बैठकों में भी मस्क अपने बेटे के साथ देखे जाते हैं। लेकिन 130 दिन के भीतर ही मस्क और ट्रंप के रिश्ते कड़वे हो गए। सरकारी खर्च और टैक्स पर ट्रंप का कानून OBBB विवाद की वजह बना। रिश्ते इतने बिगड़े कि दोनों ने एक दूसरे को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर धमकी देना शुरू कर दिया। हालांकि अब एक बार फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ गई हैं, लेकिन ट्रंप अब मस्क के एक्स से ज्यादा ट्रुथ सोशल पर एक्टिव रहते हैं, अपनी बातें कहते हैं। जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी बदलाव आया है, क्योंकि ये जो पहले आइडियोलॉजिकल थी, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट थी, वो अब ट्रांजैक्शनल हो गई है शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ और कहते हैं या करते हैं। और जो मेजर शिफ्ट जो है वो देखी जाए तो जो इनकी अलायंसेस थी वो काफी बीटिंग ले रही हैं और ये कंसिडर करते हैं कि अलायंसेस एज ए टूल फॉर फॉरेन पॉलिसी एंड नॉट फॉर वैल्यूज ऑफ इट। का डॉलर उसके लिए खाली डॉलर नहीं, एक पावर का टूल है, एक ऐसा औजार है जिसका वो इस्तेमाल करता है अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। और वो जानता है कि डॉलर की दादागिरी जब तक है, जब तक अमेरिका एक आर्थिक शक्ति बनी हुई है। स्थिति से भी रिश्ता है इसका। दो रिश्ते हैं। एक तो ये भी रिश्ता है कि ट्रंप की फिलहाल पॉपुलैरिटी बहुत लो जा रही थी। एक एप्स्टीन स्कैंडल है, सेक्स स्कैंडल है, उसको लेकर के इसके मागा बेस में भी बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। एक वो सारा कंट्रोवर्सी है। दूसरी परेशानी ट्रंप को ये है, या जो वो देख रहा है, कि आने वाले नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्शन होनी है और उसमें हो सकता है कि रिपब्लिकन जो इसकी पार्टी है उनको मेजोरिटी ना मिले। तो ये दिखाना कि मैं सक्सेस हूं, वन, तेल की कीमतें कम कर पाना, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो महंगाई हो रही है और अगर तेल की कीमत ऑलरेडी ठीक ठाक कम ही है अमेरिका में, ट्रंप चाहता है तेल की कीमत आ जाए $50 पर बैरल। तो वेनेजुएला पे जो करा उसके चलते कुछ दुनिया में तेल की कीमतें में सॉफ्टनिंग आएगी। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स बिल्कुल हैं, एप्स्टीन का सेक्स स्कैंडल लेकर के और तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर के कम करने का ऑब्जेक्टिव। ट्रंप साहब 2026 तक शुरू हुई है, ये ईयर ऑफ द हॉर्स है टिबेटन, चाइनीज और जापानीज कॉस्मोलॉजी में, और ईयर ऑफ द हॉर्स बड़ा खतरनाक हो सकता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखिएगा 2026 में और आगे क्या होता है।
ट्रंप की शख्सियत में सरप्राइज एलिमेंट इतना ज्यादा है कि वो हर बात पर हैरान करते हैं और वो अपनी पसंद या नापसंद को लेकर क्रिस्टल से ज्यादा क्लियर रहते हैं। डिप्लोमेसी के जितने कायदे कानून हैं उसे वो चुटकियों में चकनाचूर कर देते हैं। उन्हें जो कहना होता है वो कह देते हैं। उनके बयान अक्सर सच और झूठ के विवाद में फंस जाते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करते। इसकी वजह से उनके पब्लिक बिहेवियर को कुछ लोग बहुत हल्का समझने लगते हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है? क्या ट्रंप पूरी दुनिया को अमेरिका का दुश्मन बना रहे हैं, या फिर दुनिया में यह दौर ही अलग किस्म का है? दुनिया के कई और नेताओं की पॉलिटिक्स भी औपचारिक परंपरा से हटकर देखी जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप बड़े से बड़े नेता की बेधड़क मिमिक्री करते हैं। सामान्य जीवन में ऐसा करने वालों को कॉमेडियन कहा जाता है। शिष्टाचार में ऐसे हाव भाव को मान्यता नहीं प्राप्त है। Well, I gotta look at this myself. Wow. What a view. This is the door to the ballroom. What a job. Unusual time to look. You know Emmanuel Macron? No, Donald, I will not be able to. Mr. President, please excuse me. Most of the people call me Mr. President, except for people that don't respect me, they call me Donald, which are probably a lot of them too. But they said, no. Putin calls me Mr. President. Emmanuel goes, no. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%, because I was told they wouldn't do it. And this is, you can take Emmanuel and add up Hans, you can add up Ludwig, you can add every name in the book. It's all the same. The answer is no. I said, Dad, Trump is right about it. I have been right about everything. Got to keep it going. Is there wood up here? Hold it. I always like to, just in case. Trump was right about everything. And I said, so you're going to do it, Emmanuel? No, I'm not. I said, okay, here's the story, Emmanuel. If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, you cannot do that. Let me just finish up. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know. Sir, in the past 1 week, President Trump has said many things with regards to his relations to India. Let me say that Prime Minister and President Trump, they have a friendly relationship and have always addressed each other with mutual respect as per diplomatic norms. If you take a look at India and Pakistan, they started to fight. They're two nuclear nations. They were shooting each other. 8 planes were shot down. And I said, listen, if you guys are going to fight, I'm going to put tariffs on you. We've had the most successful first year of any president in history. And it should be a positive. ट्रंप प्रशासन से जुड़े औपचारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसे ऑडियो वीडियो रील्स शेयर करते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। सवाल करते हैं कि क्या अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के लिए यह सब डेकोरम के दायरे में आता है? एक बार तो ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर हुआ एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया, जिसमें ट्रंप को पोप की तरह दिखाया गया था। ये एआई के जरिए बनाया गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ हाव भाव ऐसे होते हैं जिन्हें पद की गरिमा के मुताबिक
नहीं माना जाता, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए उसे भी पूरे मन से करते हैं। जैसे उन्होंने अपने कोट में एक ब्रोच लगाया जो हैप्पी ट्रम्प का एनिमेटेड वर्जन था। That's called a happy Trump. And considering the fact that I'm never happy, this is called a happy Trump. Somebody gave it to me, I put it on. सबको याद होगा कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप ने प्रमुख पदों पर जो नियुक्तियां की, उनमें कई पर विवाद हुए। हेल्थ डिपार्टमेंट का जिम्मा जिस रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को सौंपा गया, वो कोरोना के दौरान एंटी वैक्सीन के प्रचार में शामिल थे। मेक अमेरिका हेल्दी अगेन कैंपेन की शुरुआत में ट्रंप, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और मस्क के सामने बर्गर रखा हुआ था। फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर विभाग का जिम्मा लिंडा मैकमोहन को दिया, जिनके पास इस काम का पूर्व अनुभव नहीं था। होमलैंड सिक्योरिटी का जिम्मा लेक को दिया, जिनके कट्टरपंथी विचारों के कारण विवाद हुआ। विवेक रामास्वामी को कॉमर्स सेक्रेटरी बनाया, जबकि उनके पास सरकारी काम का अनुभव कम था। CIA चीफ के पद पर रिचर्ड ग्रेनल की नियुक्ति पर अनुभव की कमी का विवाद हुआ। FBI चीफ के पद पर काश पटेल की नियुक्ति हुई तो अनुभव की कमी और विभाग की स्वतंत्रता पर सवाल उठे। लेकिन ट्रंप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। ये बात दिगर है कि इनमें से कुछ ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। तुलसी गबार्ड के बारे में तो सबको पता है कि पहले उनकी नियुक्ति की और बाद में उन्हें ही भला बुरा कहने लगे। इशू है थोड़ा व्हाइट रेसिज्म का, वो एक अलग, क्योंकि ट्रंप के आने से जो इनका फोकस है, ये बनाना चाहते हैं अपने देश को एक व्हाइट क्रिश्चियन नेशन। तो जब ये व्हाइट क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कुछ फ्रिंज के लोग होते हैं, हार्डलाइनर्स होते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज या बिहेवियर करते हैं जिसके चलते जो व्हाइट ना हो और क्रिश्चियन ना हो उसके उनको परेशानी और हेट्रेड के केसेस बनते हैं। चीन इससे बड़ा खुश है, दो कारण है उसके। एक तो अभी अमेरिका अपना इन्वॉल्व है इन सबसे, तो उनको टाइम मिल रहा है ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए, बिल्डअप के लिए। और दूसरा जो है वो ज्यादा खुश इसलिए है कि जो अमेरिकन अलायंसेज हैं वो वीकन हो रहे हैं, और उनको पता है कि अगर अमेरिका उनसे भिड़ता है आगे फ्यूचर में अकेले तो बेटर है, लेकिन अगर अलायंसेस के साथ आता है तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो इन कारण से चाइना एट द मोमेंट इन डेवलपमेंट से काफी हैप्पी है। ट्रंप के व्यक्तित्व की बेफिक्री कई बार उनके अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए अपमान की तरह देखी गई। अमेरिका के दौरे पर आए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के सामने एक वीडियो चला दिया, जिसमें श्वेत किसानों की लूट और संहार का दावा किया जा रहा था। सबके सामने राष्ट्रपति से सवाल करने लगे। हाई लेवल डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता, लेकिन ट्रंप ने कर दिया, और वो भी डंके की चोट पर। That we've just seen on the screen. I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. 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 Horrible death. Death. I don't know. Let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका है। यहाँ पर राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों ने कैमरे के सामने जेलेंस्की के कपड़े और व्यवहार पर ऐसी टिप्पणी की जिन्हें आपत्तिजनक माना गया, लेकिन ट्रंप ने बार बार वही व्यवहार किया। You haven't been allowed. You haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. I do like your clothing, though. Yeah, really? Even though I think he's a great guy, by the way. I don't know if you two like each other, but you know what? I think he's dressed. I think he's dressed. I like this guy. I don't know. I think he's dressed beautiful. इसके अलावा ट्रंप ने G7 की बैठक में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को वीक और डिसऑनेस्ट कहा। नाटो की समिट में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल के सामने जर्मनी को रसिया का कैदी कहा। यूएन की बैठक में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों को स्टूपिड कहा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को अमेरिकी उत्पादों की तस्वीरें दिखाई, जिसे बर्गर डिप्लोमेसी कहा गया।
रशिया को सैंक्शंस कर रहे हैं, अभी थोड़ा फोर्स भी दिखाया है ऑयल टैंकर की तरफ रशियन। यूरोपियन यूनियन जो इनका अलायंस था जो काफी सालों से, उसको देखिए आप प्रेशर कर रहे हैं कि आप यूरोपियन यूनियन अपनी इश्यूज जो अपने खुद इकोनॉमिक फंड करें। वेनेजुला पे जो अटैक हुआ है वो ऑयल के लिए है। अब देखिए बांग्लादेश से इनको आइलैंड चाहिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ उनको एयरबेस चाहिए, और ग्रीनलैंड की तरफ भी इनकी आंख है ताकि जो रेयर अर्थ है उधर उसको डिप्लॉय कर सकें। तो अगर आप ये देखें तो पैटर्न नजर आता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की इस शैली और पर्सनालिटी में कुछ आलोचकों को मैडनेस दिखती है, लेकिन कुछ रणनीतिकारों को इसमें मेथड दिखता है। इस डिजाइन के लिए वो थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन का नाम लेते हैं। चर्चा तो स्टीफन मिलर की भी होती है, जिसे ट्रंप का प्राइम मिनिस्टर तक कहा जाता है। रिपब्लिकन के वोट बैंक में ग्रामीण हिस्सेदारी ज्यादा है, इसलिए ट्रंप की पॉलिटिक्स में काउबॉय जैसी आक्रामकता देखने को मिलती है। अमेरिका में मिड टर्म पोल भी होने वाले हैं, जिसमें हार जीत का दबाव भी ट्रंप पर काफी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान और सबसे रईस देश है। यह छवि ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकता है। उनका पूरा व्यवहार इसी के बीच आगे बढ़ता दिखता है। अमेरिका के मिनियापोलिस में घुसपैठियों के खिलाफ आइस के अभियान में एक महिला की मौत हो गई। नतीजा, जनता सड़कों पर उतर आई। लेकिन ट्रंप और उनका पूरा महकमा अपने अधिकारियों के साथ खड़ा रहा, घुसपैठियों पर अपने रुख के लिए झुका नहीं। इससे पहले उन्होंने व्हाइट हाउस का एक हिस्सा ही तोड़वा दिया था। That we're talking about, that's an interior of the ballroom, and it's the highest level, and you see it goes beautifully with the White House. व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर की जगह ऑटो पेन की तस्वीर लगा दी, ये दिखाने के लिए कि बाइडेन अपने हस्ताक्षर तक खुद नहीं करते थे। कैनेडी सेंटर के नाम के आगे डोनाल्ड जोड़वा दिया, जो कि अब डोनाल्ड कैनेडी सेंटर बन गया। They now call it the Donroe document, I don't know. एप्स्टीन फाइल के शोर को वेनेजुएला के अटैक से दबाने की कोशिश की, लेकिन अपनी विदेशी नीति को मुनरो डॉक्ट्रिन की तर्ज पर डोनरो डॉक्ट्रिन कहना शुरू कर दिया। All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot. By a real lot. They now call it the Donroe document, I don't know. जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसमें, और जो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, उसमें इंडिया और यूएसए का आगे जाके क्या होगा इंगेजमेंट्स में और इनके फॉरेन पॉलिसी में। तो दो जो चीज़ें इंडिया के बारे में हैं वो अमेरिका को भी पता है, और ये है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट काउंटरवेट बन सकता है और इसकी इम्पोर्टेंस भी है। दूसरा ये है कि चाइना को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बहुत पसंद है और वो उनको काफ़ी हाई प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए वो कोई अलायंस नहीं ज्वाइन करते, स्पेशली वेस्टर्न अलायंस किसी के साथ भी नहीं है। और जो पॉलिसी पहले थी नॉन अलाइंड, अभी पॉलिसी ऑफ इक्विडिस्टेंसी है। इशू बेस्ड जो हैं, इशू बेस्ड इंगेजमेंट्स हैं, बेनिफिट ड्रिवन इंगेजमेंट्स हैं, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को काफ़ी महत्व देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर देखी जाएं
तो ये जो इंडिया और यूएस की इंगेजमेंट है उसमें लव और हेट का रिलेशनशिप बन जाता है। अमेरिका में 2 किस्म के आप भारतीय मान लिए रहते या 3। एक किस्म है जो वहां लीगल है, सिटीजन्स है, ओके। दूसरे हैं जो कि ग्रीन कार्ड पर हैं। तीसरे हैं जो कि H1 वीजा, स्टूडेंट वीजा इत्यादि में है। और चौथी कैटेगरी है जो कि इलीगल्स है। काफी इलीगल भारतीय भी हैं अमेरिका में। आपको याद होगा जो बेड़ियां पहना के जिनको भेज रहे थे। तो ट्रंप की नीतियों का असर जो सबसे पहला पड़ेगा, यस, जो इलीगल भारतीय उन पे पड़ेगा, पड़ रहा है ऑलरेडी और पड़ेगा। अमेरिका अपने देश के अंदर रोज उसने टारगेट दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कि हर रोज के 1000 इलीगल बंदे पकड़ के लाओ, जैसे भी लाओ पकड़ के लाओ, दफ्तरों में जाओ, घरों में जाओ, मार्केट्स में जाओ, इलीगल ढूंढो, पकड़ के लाओ। तो सब पकड़ रहे हैं तो उसमें हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाई बहन भी आएंगे, इलीगल से वो पड़ेगा। दूसरा असर जो ओवरऑल पड़ रहा है हमारे H1 वालों को वीजा का, वो तो पड़ ही रहा है। वो अमेरिका की केवल भारत के लिए नहीं, उनकी ओवरऑल H1 पॉलिसी है कि H1 वीजा देने कम तो नहीं करने हैं, पर किस तरह के लोगों को देने हैं, राइट, उन पे फर्क पड़ेगा। ग्रीन कार्ड वालों पे भी कुछ फर्क पड़ेगा कि उनकी जो सिटीजनशिप वो चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रीन कार्ड से नॉर्मली सिटीजनशिप नेक्स्ट स्टेप था, पर अब इन्होंने सिटीजनशिप के लिए काफी कंडीशंस और बैकग्राउंड चेक्स और बहुत बढ़ा दिए हैं। तो कुछ ग्रीन कार्ड्स वालों को वैसे फर्क पड़ेगा। हो सकता है उनकी सोशल मीडिया में कुछ निकल आए कि उन्होंने ट्रंप के खिलाफ काफी कुछ बोला, इसराइल के खिलाफ, तो जब सिटीजनशिप की इंटरव्यू हो उनकी सिटीजनशिप डिनाई हो सकती है, राइट, ये फैक्ट है। ट्रंप ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया, घरेलू किसानों की रक्षा के लिए मेक इन अमेरिका पर जोर दिया। इसीलिए उन्होंने टैरिफ का बम फोड़ा और गैर अमेरिकियों की एंट्री के नियमों में भारी फेरबदल और फीस बढ़ाने का प्रयोग किया, ताकि अमेरिका के लोग खुद को महत्वपूर्ण समझ सकें। दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर का रुतबा बना रहे। इसके लिए ट्रंप चीन और रूस से लड़ते भी हैं, लेकिन व्यापार भी करते हैं। उनका जोर व्यापार पर है, कमाई पर है, अमेरिका को फिर से महान बनाने के नारे पर। अगर देखें हिस्टोरिकली तो काफ़ी इंडिया के पास ट्रस्ट डेफिसिट था एज फार एज अमेरिका की बात लें तो, और पहले भी इन्होंने काफ़ी सैंक्शंस डाले हमारे ऊपर। इवन 1971 वॉर में इन्होंने पाकिस्तान के साइड दिया था, अपनी फ्लीट भी भेजी थी। लेकिन पिछले 3-4 डिकेड्स में काफ़ी ये ट्रस्ट बढ़ गया था, और ये जो इंगेजमेंट है वो पार्टनरशिप जो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही थी, और काफ़ी इसमें काम हुआ और काफ़ी बढ़ावा आया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद और उनके रवैये को देखते हुए ये जो 3-4 डिकेड्स की जो प्रोग्रेस हुई थी वो उसमें काफ़ी बीटिंग हुई आई है, और इसको अगर दोबारा उसको बढ़ाना की ज़रूरत है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आगे। चीन को हराने के लिए आर्थिक तौर पर अमेरिका ने ये टैरिफ पॉलिसी अपनाई। उन बहुत सारे कारणों में से एक मुख्य कारण ये बनता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन जिस प्रकार से दूसरी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है वो और ज्यादा तरक्की करे। My fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun. We are one movement, one people, one family, and one glorious nation under God. राष्ट्रपति बनने से पहले भी ट्रंप की जिंदगी में तमाम अतरंगी एपिसोड हैं। रियलिटी टीवी से लेकर रूस की यात्राओं तक, जो उनकी शख्सियत को ऐसे बनाती है जो महान अमेरिका के राष्ट्रपतियों की छवि से मेल नहीं खाता। लेकिन ट्रंप को अमेरिका ने दोबारा अपना राष्ट्रपति चुना। मागा समर्थक बड़ा वोट बैंक है जो ट्रंप की स्टाइल को ही ग्रेट मानते हैं। One way or the other, you're all going to do very well. I think really very well. Marco just gave me a note. इसीलिए ट्रंप एक सार्वजनिक बैठक में जब अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के गुप्त संदेश को सार्वजनिक कर देते हैं तो किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। सब कुछ सामान्य चलता रहता है, जैसे अमेरिका ट्रंप की आदतों का आदी हो चला है। All right, thank you. You'll make it back one way or the other. You're all going to do very well. I think really very well. Marco just gave me a note. Go back to Chevron. They want to discuss something. Go ahead. I'm going back to Chevron, Marco. Thank you, Marco.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सही, लेकिन ट्रंप के समर्थकों ने माउंट रशमोर की ऊंचाइयों पर जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, रूजवेल्ट और लिंकन जैसे महान नेताओं के साथ ट्रंप का भी चेहरा लगा दिया है और ट्रंप इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में शेयर भी करते हैं। ट्रंप सही लगे या गलत लगे, लेकिन वो हमारे वक्त की हकीकत हैं। उनके व्यवहार को सच, झूठ, उदंडता, हल्का कुछ भी कहें, लेकिन वो अपने एजेंडे पर कायम हैं। बिना रुके और डरे लगातार ऐसे काम करते हैं जैसा कि हिंदी फिल्मों में दबंग किरदार करते दिखता है। और इसी बीच ईरान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान से ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार आ गया है। ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टूक, हमला किया तो तीखा जवाब देंगे। हाई अलर्ट पर राजधानी तेहरान, ईरान की संसद में नारेबाजी भी हुई है। लेकिन इस बीच ईरान ने यह कह दिया है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने दो टूक कह दिया, हमला किया तो तीखा जवाब देंगे। ईरान में इस वक्त खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है। शहर शहर सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। ईरान के 31 में से 26 सूबों में इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी के चलते लोग अपनी बात खुलकर सामने रख रहे हैं। महिलाएं भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, लेकिन दूसरी तरफ खामेनेई की सत्ता है जो किसी कीमत पर प्रदर्शन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या ईरान में तख्तापलट का समय बहुत करीब है? क्या खामेनेई के शासन का अंत हो जाएगा? क्या ट्रंप का ऑपरेशन ईरान फुल एंड फाइनल? ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को क्या धमकी दी? कुछ लोग ट्रंप को खुश करने के लिए अपना घर जला रहे हैं। उसके हाथ हजारों ईरानी लोगों के खून से रंगे हुए हैं। ये तेहरान, वो तेहरान जहां से ईरान के सुप्रीम लीडर ने यानी खामेनेई 3 दशकों से ज्यादा तक दुनिया को पैगाम दिया। ये कहा कि ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का पुरोधा है, लेकिन अब खामेनेई की सत्ता को इन तस्वीरों के जरिए, इन प्रदर्शन के जरिए गंभीर चुनौती दी जा रही है। किसी ने रातों रात खामेनेई के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया, शाह शासन का झंडा लहरा दिया। किसी ने सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तेहरान की सड़कों पर जली हुई गाड़ियों की कतार नजर आई। कई प्रदर्शनकारी ऐसे थे जिन्होंने शहरों को हाईजैक कर दिया, सीसीटीवी को उखाड़ फेंका। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने गोलीबारी का जवाब दिया। ईरान में खामेनेई ब्रिगेड को पीट पीट कर मार डाला। उत्तरी ईरान में गवर्नर का हेडक्वार्टर जला दिया, तो खामेनेई के खुद के शहर में लोग ट्रंप से मदद मांगते नजर आए। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 100 ऐसे शहर हैं जहां हिंसा की आग भड़क चुकी है। लोग निकले, खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगे, शाह जिंदाबाद को लेकर आवाज बुलंद की गई। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर सरकार को जमकर कोसा गया, लेकिन इस बार
ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रदर्शन पर नजर। जब ट्रंप ये कह रहे थे कि वो ईरान में एक्शन ले सकते हैं, तो ईरान के सर्वोच्च नेता कैमरे के सामने आए, सीधे तौर पर अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान में बवाल और हिंसा के लिए जिम्मेदार बता दिया।